Hello friends and welcome again to a new video of Orders Recorded, and this is a very important topic. We will be discussing about CCS CCA rules, and specifically in this video we will be discussing constitution provisions and the basic information related to CCS CCA rules. This particular topic is not only important for your departmental exam, but it is also useful if you have to conduct disciplinary inquiry in respect of any civilian employee of your organization. It's a very big topic, and we'll try to cover uh, all the aspects of disciplinary proceedings in 4 to 5 videos. This is the very first part in which we'll be discussing the basic information. तो सबसे पहले अगर हम बात करें that क्या चीजें हैं जहाँ पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन कहाँ पे लिया जा सकता है. So for that, I just want to give you a recall on conduct rules. अगर conduct rule की बात करें तो rule 3 of conduct rule 1964. What it says? It says that every government servant shall all the time maintain absolute integrity, maintain devotion to duty, and do nothing which is unbecoming of a government servant. When we talk about this last one, do nothing which is unbecoming of a government servant, when we talk about this is a very big statement because आप किसी को भी कहीं भी फंसा सकते हो. यहाँ पे फंसा सकते हो इन द सेंस इट्स नॉट लाइक के किसी को इम्प्लीकेट करना मीन्स whatever you do inside or outside office hours which is a misconduct in the eyes of the government, this particular clause will come into effect. तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हम उसको बोलते हैं punitive vigilance. He says wherever a misconduct or corruption has come to the notice of against a government servant, then what is required? क्या जरूरी है? नंबर एक, उस गवर्नमेंट सर्वेंट को पेनलाइज करना so that others should see and they should not repeat that particular misconduct. ऐसा भी हो सकता है कि उसको किसी ने इम्प्लीकेट किया हो उस पर्टिकुलर मिसकंडक्ट के अंदर, तो टाइमली डिस्पोजल ऑफ दैट डिसिप्लिनरी एक्शन इज ऑल्सो desired. And for these things, we have to implement the disciplinary and appeal rules. And यही आपका आज का टॉपिक है CCA रूल्स 1965. But first of all, we must understand कि क्या क्या आपके स्टेप्स हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आपके स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप है आपका इन्वेस्टिगेशन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस. सेकंड स्टेप है इश्यू ऑफ चार्जशीट, उसकी चार्जशीट इशू करना. क्यों करना पड़ता है अभी हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर. थर्ड थिंग इज होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी. समटाइम्स होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी इज नॉट डिजायर्ड, वो केस भी हम डिस्कस करेंगे. देन जब इंक्वायरी होगा तो उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी और इंक्वायरी रिपोर्ट का कंसिडरेशन एंड बेस्ड अपॉन दैट इंक्वायरी रिपोर्ट passing the final order. Means if that person is found guilty of the misconduct, उसके ऊपर पेनल्टी लगाना. पेनल्टी कितनी टाइप की होती है अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड अगर वो गिल्टी नहीं है देन इस केस में उसको एग्जीक्यूट करना. फाइनल ऑर्डर का मतलब ये. बट ये सारी कहानी जो है, जो ये ऑर्डर आता है या आपका जो ये सीसी रूल की बात कर रहे हैं, इसको बनाने की पावर्स कहां से मिलती है. जब हम पावर की बात करते हैं तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा लॉ है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 के अंदर जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात की है.
तीन रूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज आर्टिकल 309। आर्टिकल 309, इसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 309 क्या बोलता है? आर्टिकल 309 बोलता है who is empowered to make rules governing the condition of service. So what it says, subject to the provisions of this constitution, the act of appropriate legislator may be regulate the recruitment and condition of service of a person appointed to the public service and post in connection with the affair of the union or of any state. तो अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटर से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि एज फार एज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर कंसर्न्ड, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड, एंड एज फार एज स्टेट गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, द स्टेट लेजिस्लेटर्स आर एम्पावर्ड। बट ये मैं आपको बता दूं कि कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के आज तक कभी भी पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लेजिस्लेटर्स नहीं बनाया है। तो क्वेश्चन उठता है कि फिर आप, मैं और दूसरे लोग, हमारी सर्विस कंडीशन किसने फाइनलाइज की? उन्होंने इसका प्रोविजो दिया है इसी के अंदर कि अगर बन गया एक्ट तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड एंड फॉर स्टेट गवर्नमेंट के लिए द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू finalize the condition of service in respect of employees. जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, हम वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं होता कि प्रेसिडेंट खुद बनाएंगे। प्रेसिडेंट कैन डेलीगेट, और सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द मिनिस्टर इन चार्ज। ठीक है, अब मिनिस्टर फर्दर इसको नीचे डेलीगेट कर देते हैं उसके अंदर, तो कहाँ पे कौन करेगा वो डेलीगेशन ऑफ पावर में लिखा हुआ है, उसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। पर ध्यान रखिएगा कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको ये बात इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट का मतलब प्रेसिडेंट इन पर्सन नहीं है। प्रेसिडेंट का मतलब in some cases it is the minister in charge, and if it is delegated to the subordinate officers तो वहां पे वो एक्सरसाइज करेंगे उनकी पावर। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 310। इसको लोग डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर भी बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है विच आर्टिकल इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 310 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस मिलेंगे ऑफ कोर्स आपको। यहाँ पे व्हाट इट सेज that except as expressly provided by this constitution, every person who is a member of defense service or of a civil service of the union or all India service or hold any post connected with defense or civil post under the union holds office during the pleasure of the president, and every person is a member of the state during the pleasure of the governor। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब तक प्रेसिडेंट साहब आपसे खुश हैं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज तो तब तक आपकी नौकरी बची हुई है, अदरवाइज अगर खुश नहीं है तो नौकरी जा सकती है। पर क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि सर प्रेसिडेंट साहब मुझसे खुश क्यों नहीं होंगे? वो तो मुझे जानते भी नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वो मुझे जानते नहीं। तो यहाँ पे फिर मैं बोल रहा हूँ कि प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट का मतलब जिनके नीचे आप काम कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट साहब के बिहाफ के ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसका मतलब तो गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट सर्विस में कोई डिफरेंस ही नहीं है। प्राइवेट सर्विस में भी जो भी आपका ऑनर होता है कंपनी का, वो जब तक आपको निकाल सकता है। तो क्या गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट सर्विस में कोई डिफरेंस नहीं है? आंसर इज नो, डिफरेंस है। क्योंकि आर्टिकल 310 का प्रोटेक्शन आर्टिकल 311 के अंदर गिवन है। बट देयर आर सर्टेन पोस्ट, सर्टेन सर्विसेज जहां पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर नहीं चलता।
So we'll be discussing what are the services, which are the services which are excluded from this pleasure doctrine. Yes, any of the services. These are the Supreme Court judges, is Article 1 to 4. Then the appointment of Auditor General under Article 148. High Court judges, Article 217, 218. The member of Public Service Commission, UPSC, Article 317, and the Chief Election Commissioner, Article 324. These articles, as well as these services, are very important as far as your exams are concerned. They can ask you, okay, the appointment of Supreme Court judges is not included in pleasure doctrine under which article. So all these articles are very important. So you must go through all these articles. Now we are discussing कि अगर हम आर्टिकल 310 की बात करें, प्रेजेंट डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, तो वहां पे उन्होंने बोला कि जब तक प्रेजेंट साहब पूछे देन आपकी नौकरी बची हुई है, अदरवाइज अदरवाइज नौकरी से निकाला जा सकता है. बट दे आर सर्टेन प्रोटेक्शन टू द सिविल employees, civil servant. What are those? The first protection is कि अगर किसी एम्प्लॉय को सर्विस से निकालना है, डिसमिस करना है, रिमूव करना है, तो कोई भी अथॉरिटी विच इज सबऑर्डिनेट टू द अथॉरिटी हु हैज अपॉइंटेड द गवर्नमेंट सर्वेंट, वो उसको हटा नहीं सकती. यानी जिसने अपॉइंट किया है वही या उससे ऊपर कोई अथॉरिटी. तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया अपॉइंटिंग अथॉरिटी का. हम इसके बारे में बात करेंगे आगे डिटेल के अंदर बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी. देन सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि बिना इंक्वायरी के किसी भी पर्सन को डिसमिस, रिमूव या रिड्यूस इन रैंक नहीं किया जा सकता. और उस इंक्वायरी के अंदर क्या होना चाहिए? दो चीजें होनी चाहिए. नंबर एक, ही और शी शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस. उसको बताया जाए कि उसके अगेंस्ट चार्जेस क्या है. एंड देन ही शुड बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोस चार्जेस. ये दो एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगेन इसके अंदर एक प्रोविजो है. दो चीजों बोली. नंबर एक, अपॉइंटिंग अथॉरिटी से सबऑर्डिनेट अथॉरिटी गवर्नमेंट सर्वेंट को रिमूव नहीं कर सकती है. सेकेंड थिंग जो है वो क्या है आपका कि इंक्वायरी होगी. इंक्वायरी के अंदर दो चीजें होंगी, इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस एंड सेकेंड थिंग इज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना. रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है आगे बात करेंगे. लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है या इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है. यानी इसका प्रोविजो दे रखा है. क्या क्या प्रोविजो दे रखा है? नंबर वन, वो कहता है कि अगर सपोज करिए हमने इंक्वायरी कर ली, इंक्वायरी के अंदर जो है हमने कुछ एविडेंस दिए और एविडेंस कंक्लूड होने के बाद ये हो गया कि इसके ऊपर पेनल्टी लगानी है. तो कहता है पेनल्टी लगाने से पहले उसको दोबारा अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है अगर आप पहले दे चुके. और सेकंड प्रोविजो क्या है? सेकंड प्रोविजो और इसके अंदर ये है कि अगर सपोज करिए ऑलरेडी उस एम्प्लॉय का कन्विक्शन हो चुका है किसी क्रिमिनल चार्ज के अंदर, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, तो डिपार्टमेंट को दोबारा इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है. इसका एक पीछे एक लॉजिक है. काफी इसके केस लॉज हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर. वो ये है कि एज फार एज कोर्ट ऑफ लॉ इज कंसर्न, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो आपका विटनेस होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, एविडेंस का जो लेवल होता है वो होता है बियॉन्ड डाउट, तभी उसको कन्विक्ट किया जाता है.
जबकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के अंदर क्या होता है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के अंदर लेवल ऑफ एविडेंस जो होता है वो होता है आपका प्रोपेंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब क्रिमिनल चार्जेस अगर उसके खिलाफ प्रूव हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे जो जज साहब हैं उन्होंने ऑलरेडी इसको सब कुछ देख लिया कि हाँ बियॉन्ड डाउट द पर्सन इज कन्विक्टेड, तो उस केस के अंदर उसको यहाँ पे डिसमिस या रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगेन मैं फिर बोल रहा हूं कि यहाँ पे कन्विक्शन ऑफ ए क्रिमिनल चार्ज का ग्रेविटी क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, जहां पे एक दिल्ली मिल्क स्कीम का एक एम्प्लॉय था, एंड बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, और उसने कुछ कलेक्शन किया अराउंड 1600 रुपीज का, लेकिन ट्रेजरी के अंदर उसने डिपॉजिट करवाए 1100 अराउंड समथिंग रुपीज। 500 रुपीज का जो डिपॉजिट नहीं करवाए, उसके ऊपर उसके खिलाफ एक क्रिमिनल केस चला, जहां पे उसको कन्विक्टेड कर दिया गया। बट वहां पे उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हुआ था, जज साहब ने दो तीन चीजें लिखी थी रिगार्डिंग द बैकग्राउंड ऑफ द केस। It was actually that particular employee was going through some difficult time as far as personal life is concerned. उसके बेटे की डेथ हो गई थी, वाइफ बिल्डिंग से नीचे गिर गई थी, डॉक्टर बीमार हो गई थी, so many things were there। तो वहां पे उन्होंने बोला था कि उसका मेंटल स्टेटस ऐसा नहीं था कि जो है उससे गलती ना हो, तो लेकिन बट हाँ कन्विक्टेड, एंड बेस्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर कन्विक्शन उसके ऑफिस ने उसको डिसमिस कर दिया, रिमूव कर दिया, लेकिन बाद में फर्दर कोर्ट ने उसका डिसमिसल रिमूवल खत्म कर दी। सो ये रीजनेबल होना चाहिए। कन्विक्शन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज का मतलब वहां पे भी आपको ग्रेविटी देखनी है, बिना ग्रेविटी के ऐसा नहीं है कि सिंपल किसी पर्टिकुलर केस के अंदर वो कन्विक्ट हो गया तो आप उसको डिसमिस और रिमूव ही करेंगे, हर केस में ऐसा नहीं है। थर्ड है क्या कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वेयर द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू डिसमिस और रिमूव अ पर्सन or to reduce him in rank is satisfied that for some reasons to be recorded by that authority in writing, it is not reasonably practicable to hold such inquiry। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे केस लॉज हैं, और उन केस लॉज को अगर आप पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। यहाँ पे एक केस लॉज है जो आपका 1986 का है, दैट इज तुलसीराम पटेल एंड अदर्स। तुलसीराम पटेल का जो केस है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, अगर आपको इसको समझना है। उसके अंदर दो तीन एस्पेक्ट्स जो हैं, दो तीन केस जो है वो डिस्कस हुए थे, जिसके बारे में बता देता हूँ। तुलसीराम पटेल साहब जो है एक ऑडिटर थे, और उनको किसी पर्टिकुलर केस के अंदर कुछ एक इंक्रीमेंट का लॉस दिया गया। चलिए दिया गया तो कोई बात नहीं, बट ही वेंट टू दैट सीनियर ऑफिसर, और वहां पे उन्होंने पूछा भाई तुमने मेरा जो है ये कैसे पेनल्टी लगा दी मेरे ऊपर। तो सीनियर बॉस ने बोला मैंने नहीं लगाई, जो आपका इंक्वायरी हुई थी उसके अंदर ही हुआ, तो मुझे तो ऑर्डर मिला कि आपके एक इंक्रीमेंट रोको तो रोक दी, एंड इन्होंने उसके ऊपर असॉल्ट कर दिया, और उसके बाद यह डिपार्टमेंट ने इनको बिना किसी फर्दर इंक्वायरी के डिसमिस कर दिया। इनफैक्ट नॉट, इट वाज नॉट डिसमिसल, इट वाज कंपल्सरी रिटायर कर दिया। एक और केस इसकी सेम इसी के अंदर डिस्कस हुआ था, दैट वाज अ बोकारो स्टील प्लांट का केस था। कुछ सीएसएफ के से या कुछ स्टाफ था, और वहां पे कुछ इंसिडेंट हुआ था बोकारो स्टील प्लांट के अंदर, और वहां पे इन एम्प्लॉयज को बिना इंक्वायरी के डिसमिस कर दिया गया था। वो भी सेम केस के अंदर डिस्कस, आप उसको पढ़ेंगे तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस, और वहां पे आपको ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है आपका नॉट रीजनल प्रैक्टिकेबल जो है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। सेम केस के अंदर ही एक और एमपी का केस डिसाइड हुआ था, जहां पे कुछ दो कांस्टेबल थे शायद सीएसएफ एमपी पुलिस के, और उनको डिसमिस कर दिया गया, एंड उसके बाद वहां पे कुछ और उसके डिपार्टमेंट के साथियों ने वहां पे कुछ किया। तो बहुत ही इसके ऊपर ग्रेव जो है कोर्ट ने कमेंट किया था।
तो आई विल रिकमेंड यू कि वो तुलसीराम पटेल एंड अदर्स वाला जो केस 1986 का है वो आप जरूर पढ़िए। मैं उसका लिंक जो है अपना जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम वाला जो प्रिपरेशन वाला उसमें भी शेयर कर दूंगा और आप उसको पढ़िए, आपको उसका क्लियर हो जाएगा आइडिया कि क्या केस है। थर्ड है आपका where the president of or governor as the case may be satisfied that in the interest of the security of the state it is not expedient to hold such inquiry। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो ऊपर था वहां पे लिखा हुआ था द अथॉरिटी एम्पावर्ड, वो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट। अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रेसिडेंट का मतलब प्रेसिडेंट इन पर्सन नहीं है, प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे मिनिस्टर इंचार्ज है। ठीक है, यहाँ पे डेलीगेशन वाली बात नहीं, यहाँ पे मिनिस्टर इंचार्ज की बात होगी। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इसको ध्यान रखिएगा। नंबर 1 जो अभी तक हमने पढ़ा उसके अंदर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन को हम आगे डिस्कस करेंगे। और जहाँ पे दूसरी अथॉरिटी डिसिप्लिन अथॉरिटी, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब जब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी के अंदर 2-3 चीजें हैं। नंबर 1 अपॉर्चुनिटी टू नो द चार्ज। सेकेंड थिंग कि ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन इफ यू वांट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिसके यूज करके आप उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट को गिल्टी प्रूव करना चाह रहे हैं, उसको इंस्पेक्शन करने की भी उसको परमिशन होनी चाहिए। और थर्ड है कि जो भी आप एविडेंस कर रहे हैं, जो भी आप विटनेस यूज कर रहे हैं, तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने की एंड अपने डिफेंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स और विटनेस प्रोड्यूस करने की परमिशन होनी चाहिए। ये बहुत सारे कोर्ट केसेस के अंदर इसको ये माना गया कि दिस इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी लिखा हुआ नहीं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जहां से हमने स्टार्ट किया था, व्हाट वाज दैट सीसीए रूल्स 1965 ये क्या है। अगर हम इसकी पूरा नाम की बात करें, इट इज सेंट्रल सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965। 1 दिसंबर 1965 को ये लागू हुए थे। अब हम बात करते हैं एक एक वर्ड की। सबसे पहले हम बात करें कि सेंट्रल सिविल सर्विस क्या है। सेंट्रल सिविल सर्विस जो इन्हीं रूल के अंदर शेड्यूल लिखे हुए हैं, शेड्यूल के अंदर आपके हर एक सर्विस का मेंशन कर रखा है कि कौन सी सर्विस को हम सेंट्रल सिविल सर्विस मानेंगे। अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। पहले ग्रुप डी भी होता था, लेकिन 6 सीपीसी के अंदर उन्होंने इसको खत्म कर दिया। आज के दिन में सिर्फ 3 ही ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट के हिसाब से ग्रुप ए क्या है, ग्रुप बी क्या है, ग्रुप सी क्या है। तो अगर हम पे की बात करें तो लेवल 10 एंड अबव, टोटल 18 लेवल्स हैं, ये कहलाएंगे आपके ग्रुप ए। लेवल 6 टू लेवल 9 इनको बोला जाता है ग्रुप बी। लेवल 5 एंड बिलो इनको बोला जाता है ग्रुप सी। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पे भी नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन है तो उस केस के अंदर उसको उस ग्रुप में नहीं माना जाता है। 2 एग्जांपल स्पेसिफिकली देना चाहता हूं। एसएसए को कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद एनएफएस मिल जाता है लेवल 6 में। उनका ओरिजिनल लेवल है लेवल 4 और कुछ 4 इयर्स से 5 इयर्स की सर्विस के बाद या जब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कि अप टू अगर वो 30% ब्रैकेट में आते हैं, टॉप 30% ब्रैकेट में आते हैं, तो उनको लेवल 6 में दे दिया जाता है।
तो चाहे वो लेवल 6 में हो जाए फिर भी उनको ग्रुप सी ही माना जाता है। सेकेंड एस्पेक्ट बताता हूं कि अगर सेक्शन ऑफिसर हैं वो आपके लेवल 8 में होते हैं, लेकिन 4 साल की अप्रूव्ड सर्विस के बाद उनको लेवल 10 दे दिया जाता है, लेकिन स्टिल दे विल बी कॉल्ड इन ग्रुप बी एंड नॉट ग्रुप ए। ये सब चीजें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको ध्यान में रखिएगा पढ़ते वक्त। कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको स्पेसिफिकली ऐसा जो मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं आपको, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सेकेंड एस्पेक्ट की, जो मैंने आपको पहले बताया था। क्योंकि कोई भी अथॉरिटी जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से सबऑर्डिनेट है वो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस, रिमूव नहीं कर सकती। तो क्वेश्चन उठता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी की डेफिनेशन आपकी सीसीए रूल्स के रूल नंबर 2 में गिवन है। क्या गिवन है मैं आपको दिखा देता हूं। क्या लिखा हुआ है उसमें? लिखा हुआ है the authority empowered to make appointment to the service. The word service is important here. Second लिखा हुआ है the authority empowered to make appointment to the post. Third बात लिखी हुई है the authority which appointed the government servant to such service. And fourth है कि अगर कोई परमानेंट मेंबर है किसी और सर्विस का, तो जिसने उस परमानेंट पोस्ट पे अपॉइंट किया हुआ है, इन चारों में से जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है वो उस गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी काउंट होगी। बट अगर आप इसकी प्लेन रीडिंग पढ़ेंगे ना, कुछ समझ में नहीं आता है। ये विद एग्जांपल अगर आप चीजों को सीखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। उसके लिए मैं आपको कुछ एक बेसिक बातें बता देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। अगर हम एक एमटीएस की बात करें, एक एमटीएस के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सी होती है? डीएस। एक डीएसए के लिए डायरेक्टर, ठीक है। और कोई भी अगर आपका ग्रुप बी या ग्रुप ए जैसा है जहां पे कुछ प्रेसिडेंट होती है, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट कैन डेलीगेट। अब सपोज करिए कि एक एमटीएस जो है आज के दिन में उसके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? डीएस है। लेकिन मान लो कभी पहले कभी ऐसा कभी रहा हो कि डायरेक्टर अपॉइंटिंग अथॉरिटी थे किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट के टाइम, बहुत पुराने, क्योंकि क्या होता है कि फर्दर डेलीगेट करके किसी सीनियर ऑफिसर से जूनियर ऑफिसर को डेलीगेट करवा दी जाती है, बाद में होता है, टाइम डिपेंड्स। अब उस पर्टिकुलर एमटीएस के अपॉइंटमेंट के टाइम डायरेक्टर थे, आज के दिन में कौन है? डीएसए मान लीजिए। तो अगर इस केस के अंदर उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ अगर मुझे कोई डिसिप्लिनरी केस चलाना है और उसको डिसमिस या रिमूव करना है, उस केस के अंदर उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगी? डायरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और खास तौर पे ध्यान रखिए जब कोर्ट के अंदर बात जाती है ना, तो कोर्ट के अंदर बात जाते हुए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपने जो रूल्स में लिखा है उसको फॉलो किया या नहीं किया। कहीं पे भी अगर रूल का वायलेशन होता है, सारी की सारी जो आपकी मेहनत होती है डिसिप्लिन केस चलाने वाली, वो जीरो हो जाती है। तो रूल्स का आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपॉइंटिंग अथॉरिटी की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके ऊपर अगर आपको कोई डाउट अगर फर्दर भी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आई विल डिस्कस ऑल दोस डाउट्स कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर और फर्दर क्या चीज होती है। मैं बात करूं तो इसी वक्त अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऊपर 1 घंटा बात कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि जो सीसीए रूल के अंदर हमारी पेनल्टी डिफाइंड है, टोटल 10 पेनल्टीज हैं। 5 पेनल्टीज जो हैं वो आपकी माइनर पेनल्टीज कहलाती हैं, 5 पेनल्टी मेजर पेनल्टी कहलाती हैं।
कहाँ लिखा हुआ है? रूल 11 ऑफ सीसीए रूल। तो कोई भी अथॉरिटी जो इनमें से कोई भी एक पेनल्टी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को लगा सकती है, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की कुछ पावर्स होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो उसमें से एक जो है वो पावर क्या है कि वो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई भी पेनल्टी लगा सकती है जो सीसीए रूल में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि अगेन जो हमने एक भी पहले भी पढ़ा था, अब और आगे बात करते हैं कि क्या स्टेजेस क्या है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की स्टेजेस क्या है। तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है कंप्लेंट। किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ आपको कोई कंप्लेंट मिली, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? तब हम उसकी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में प्रामा फेसी में पता लग गया कि यस, इसके अंदर कुछ तो है सब्सटेंस। So in that case, based upon that particular preliminary investigation, we will give him charge sheet. ठीक है, चार्ज शीट के बाद हम क्या करेंगे? उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। कब? अगर चार्ज ऑफिसर चार्जेस को डिनाई करता है, जो कि मैक्सिमम टाइम होगा कि वो मना करेगा कि नहीं। इस केस के अंदर हम अगर ओरल इंक्वायरी कर रहे हैं तो उस केस के अंदर हम आईओ और पीओ अपॉइंट करते हैं। आईओ स्टैंड फॉर इंक्वायरी ऑफिसर, पीओ स्टैंड फॉर प्रेजेंटिंग ऑफिसर। अगर आप बिल्कुल लेमन की भाषा में पढ़े तो आईओ का मतलब पता है क्या है? आईओ का मतलब कि वही काम है जो काम जज करता है, यानी कि वो सुनता है सारी की सारी जो आपके एविडेंस है, जो आपके विटनेस है, उनकी बात सुनेगा। जज में और आईओ में एक बेसिक डिफरेंस है। वो क्या है? जज जो है वो आपको बाद में पेनल्टी बताता है कि पेनल्टी क्या लगेगी। आईओ का काम सिर्फ ये नहीं है। आईओ सिर्फ आपको डिसिप्लिन अथॉरिटी को ये बताता है कि चार्जेस प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, बस ये बेसिक डिफरेंस है। पीओ का मतलब क्या है? पीओ मतलब प्रेजेंटिंग ऑफिसर, यानी कि जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे केस को प्रेजेंट करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मान सकते हो आप, ठीक है। इसके बारे में डिटेल एक वीडियो बनेगा जहां पे मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा आईओ और पीओ के बारे में। देन इसके बाद आईओ जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी को या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। एंड उसके बाद अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि चार्जेस प्रूव, तो वो पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेज की बात करते हैं, कंप्लेंट की बात करते हैं। तो कंप्लेंट के अंदर सबसे पहले यू शुड स्क्रूटनाइज कंप्लेंट। अब कंप्लेंट दो टाइप की हो सकती है, या तो वेग है एंड एनोनमस है, या डेफिनेट है। अगर कोई आपको एनोनमस कंप्लेंट मिलती है किसी के भी खिलाफ, वेग एनोनमस, इन दैट केस यू नीड नॉट एक्ट, you should simply drop and file with the permission of HOD, that's it. बट अगर कोई डेफिनेट है तो उस केस के अंदर सेकंड स्टेज पे बात जाएगी, यानी कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन उठता है कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले आता है कि डिपार्टमेंट कहाँ कब करेगा। डिपार्टमेंट तब करेगा अगर उसने कोई डिपार्टमेंटल मिसकंडक्ट किया है या कोई डिपार्टमेंटल इरेगुलरिटीज की हैं which can be verifiable in within the department। और पुलिस कब करेगी या सीबीआई कब करेगी? when it's a very serious nature, जहाँ पे ब्राइबरी का बात है, करप्शन की बात है, फोर्जरी, चीटिंग, फाल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड की बात है, या डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स की बात है, या आपका नॉन ऑफिशियल मिसकंडक्ट की बात होती है, तो उस केस के अंदर पुलिस करेगी। बट समटाइम्स इट हैपन्स कि कुछ पार्ट आपका ऐसा है जो पुलिस जहाँ पे वेरीफाई आपको लगता है करना चाहिए उनको, और कुछ पार्ट ऐसा है जो लगता है कि डिवीजन डिपार्टमेंट होगा। इन दैट केस डिपार्टमेंट राइट टू सीबीआई कि आप डिसाइड करिए कि आप कौन करेगा। अब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर करना क्या होता है?
प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आपको ये देखना है कि आपकी जो केस है वो प्राइमा फेसी कुछ बन रहा है नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो उस केस के अंदर उसको जब वो अपना डिफेंस करेगा उसको काउंटर करने के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए, आपके पास विटनेस होना चाहिए। तो आपको क्या करिए, जितने भी आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो कस्टडी में लीजिए, दैट विल बी बिकम पार्ट ऑफ योर चार्जशीट। ठीक है, अगर किसी दूसरे एम्प्लॉइज के पास कुछ इंफॉर्मेशन है उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए, वो आपके विटनेस बनेंगे। ठीक है, अगर किसी और डिपार्टमेंट के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वहां से सारा का सारा रिकॉर्ड मंगाइए, उसको इन्वेस्टिगेट करिए। अगर कोई वर्क्स से रिलेटेड काम है, वर्क से रिलेटेड मतलब कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कोई आपका रूम को रिनोवेट करना था, तो इट इज रिलेटेड टू वर्क्स, और वहां पता लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ मटेरियल जो है वो सब स्टैंडर्ड है या कुछ जो है मेजरमेंट्स है वो रॉन्ग है, तो उस केस के अंदर क्या है, सबसे पहले एक टेक्निकल पर्सन को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजिए। वो उसके साइट के फोटोग्राफ लेगा, मेजरमेंट लेगा, उसके बाद जो साइट होगी उसको सिक्योरिटी टाइट सिक्योरिटी में रखिए ताकि उसके अंदर कोई चेंज ना कर सके। इसके अंदर आपकी जो रिपोर्ट होनी चाहिए सेल्फ कंटेंट होनी चाहिए एंड इट शुड इंक्लूड मटेरियल टू कंट्रीब्यूट द डिफेंस। अगेन सबमिट योर रिपोर्ट टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है, अब ये सब करने के बाद जो आपका डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट क्या करेगा। अब जब आपकी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाती है तो उस केस के बाद उसके बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को दो चीजें डिसाइड करनी होती। नंबर एक कि क्या उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलानी है या उसको एक्सोनेट कर देना है, और अगर चलानी है तो किस रूल के अंदर, रूल 16 के अंदर या रूल 14। जब मैं रूल 16 और रूल 14 बात कर रहा हूं, आई एम रेफरिंग टू CCA रूल, रूल नंबर 16 और रूल नंबर 14। रूल नंबर 16 के अंदर में माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होती हैं, रूल 14 के अंदर मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स होती हैं। दोनों का प्रोसीजर अलग अलग है। एंड सेकंड जो है वो है कि क्या गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड करने की जरूरत है या नहीं है। अब जब बात करते हैं सस्पेंशन की तो इसके ऊपर एक पूरा डिटेल के अंदर वीडियो बनेगा आगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल आज के दिन जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर पेनल्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर पेनल्टी। तो 5 आपकी माइनर पेनल्टीज हैं और 5 ही आपकी मेजर पेनल्टीज हैं, और वो क्या क्या है। सबसे पहली जो पेनल्टी है वो है आपकी सेंश्योर। सेंश्योर को लोग जो है वार्निंग बोल देते हैं, रिकॉर्डेबल वार्निंग बोल देते हैं, लेकिन वार्निंग के अंदर और सेंश्योर के अंदर एक बेसिक डिफरेंस है। वो क्या है कि सेंश्योर जो है उसका एंट्री गवर्नमेंट सर्वेंट के सर्विस बुक में होती है, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि अगर सपोज करिए किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ कोई केस चला एंड कुछ ब्लेम प्रूव हो गए तो मिनिमम पेनल्टी जो है आप उसको सेंश्योर लगा सकते हैं, वार्निंग या रिटर्न वार्निंग नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी चीज है वो है आपका विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन। विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉइज के ऊपर लग सकता है विच आर ऑन द जोन ऑफ प्रमोशन, जो जोन ऑफ कंसिडरेशन ऑफ प्रमोशन में है। ऐसा नहीं है किसी का प्रमोशन 10 साल के बाद होना और आज आप उसको विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन की पेनल्टी लगा दो, कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका। थर्ड जो है वो है आपका रिकवरी फ्रॉम हिज पे, यानी कि अगर गवर्नमेंट को किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट की वजह से कुछ लॉस हुआ तो उस लॉस की रिकवरी आप उसकी पे से कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ एक से ज्यादा पेनल्टी लगा दी जाए, जिसके अंदर से एक रिकवरी ऑफ पे हो और दूसरी कोई और, तो एक से ज्यादा पेनल्टी भी लगाई जा सकती है।
थर्ड है आपका कि उसको रिड्यूस कर दिया जाए लोअर स्टेज के ऊपर 1 स्टेज से फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years एंड विदाउट कम्युनिटी इफेक्ट। तीनों का मतलब बता देता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोअर 1 स्टेज? यानी अगर सपोज करिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो लेवल 7 में काम कर रहा है, लेवल 7 में किसी पर्टिकुलर सेल पे होगा, मान लो 5वें, छठे, 7वें किसी सेल के ऊपर है, तो उसको अगर वो 7 सेल के ऊपर है तो एक सेल नीचे उसे कर दो, नीचे मतलब एक कम करनी है। ओके, इसका इफेक्ट 3 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और जितने भी टाइम के लिए आप लगा रहे हैं उस पीरियड के बाद उसकी पे वापस रिस्टोर कर दी जाएगी। विदाउट कम्युनिटी इफेक्ट का मतलब ये होता है। इसके ऊपर जो अगला वीडियो बनाऊंगा जहां पे इसका फाइनेंशियल इफेक्ट डिस्कस करूंगा, वहां पे एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन होगा, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट है आपका विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट जो है उस केस के अंदर कि उसकी इंक्रीमेंट रोक दी जाए। इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो आपका कल का वीडियो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जहां पे हम बात करेंगे विदहोल्डिंग ऑफ 1 इंक्रीमेंट एंड विदहोल्डिंग ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, उसमें डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ यानी एक्चुअली सिक्स्थ है ये, वो है आपका रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज अदर देन 4, जो आपका पीछे यानी कि यहाँ पे जो आपका डिस्कशन हुआ था ये वाला। इसके अलावा जो है आपका विदहोल्डिंग में कोई और केस हो, और केस मतलब कि अगर आपका 1 स्टेज से ज्यादा का रिडक्शन कर रहे हैं या 3 ईयर से ज्यादा कर रहे हैं या उसको कम्युनिटी इफेक्ट दे रहे हैं, एनी वन ऑफ दिस, अगर ऐसा है तो वो माइनर की बजाय क्या बन जाएगी, मेजर पेनल्टी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 4 की बजाय 3 ईयर समझिए उसके अंदर, क्योंकि वो 4th मैंने से लिखा था बिकॉज वो 4th नंबर पे लिखा हुआ था। रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे लेवल, ये भी एक आपकी मेजर पेनल्टी है। बस इसके अंदर भी एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप किसी को लोअर टाइम स्केल में तभी कर सकते हैं अगर उसने ऑलरेडी वो पोस्ट होल्ड कर रखी है तभी। इसके ऊपर मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर सपोज करिए एक एएसओ डीआर है, किसमें आया वो, लेवल 7 में आया, तो अगर लेवल 7 में अगर वो आया, डायरेक्ट आया, ठीक है, और अगर सपोज करिए उसने कुछ मिसकंडक्ट किया, तो आप उसको एसएसए ग्रेड के अंदर या जेएसए ग्रेड के अंदर नहीं रिड्यूस कर सकते, बिकॉज उसने वो पोस्ट कभी होल्ड नहीं की है। तो रिडक्शन टू लोअर टाइम स्केल में इस बात का ध्यान रखिए, सिर्फ उस टाइम स्केल के ऊपर उसको रिड्यूस कर सकते हो जो उसने प्रीवियसली होल्ड किया था कभी। बाकी के जो 3 हैं वो है आपके एक जैसे लगते हैं, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। कंपल्सरी रिटायरमेंट का क्या मतलब है? कंपल्सरी रिटायरमेंट का मतलब यह है कि उसको रिटायर कर दिया, इट मीन्स विद रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उसको पेंशन मिलेगी, उसको ग्रेच्युटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ कमी की जा सकती है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस दोनों सुनने में जैसे लगते हैं, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। वो क्या है कि अगर हमने किसी को रिमूव किया फ्रॉम सर्विस, रिमूवल फ्रॉम सर्विस में क्या किया, रिमूव किया, तो वो फर्दर किसी और डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि उसको सिर्फ इस सर्विस से रिमूव किया, लेकिन कहीं और गवर्नमेंट सर्विस में अगर वो अप्लाई करेगा, सिलेक्ट हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमने किसी को डिसमिस किया, उस केस के अंदर वो कभी भी दोबारा गवर्नमेंट सर्विस के अंदर नहीं आ सकता है। सो ये आपकी 10 पेनल्टीज थी। इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ मैं एक चीज और शुरू कर रहा हूं, तो काफी जो है, जो डिपार्टमेंट एग्जाम के पार्टिसिपेंट्स हैं वो बोल रहे थे मुझे कि सर कुछ क्वेश्चंस के टाइप बता दीजिए, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगली स्लाइड्स के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको उसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर वो सब डिस्कस कर चुका हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है
कि अगर आप यहाँ तक पहुंच रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन एमसीक्यूज के क्वेश्चंस के रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि उसका एक्चुअल आंसर क्या है। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भी शेयर कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। The date on which CCA rules 1965 came into effect. Already I have discussed. इसका आंसर आप सोचिए क्या आंसर है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। Name the authority for appointment to Group A services and post of the Union without delegating any other authority. ऑप्शन सामने है आपके, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। थर्ड है, बताइए इसमें से कौन सी माइनर पेनल्टी है। अभी डिस्कस हुआ है, कंपल्सरी रिटायरमेंट, डिसमिसल, रिडक्शन बाय वन स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट कम्युनिटी इफेक्ट, या टर्मिनेशन ऑफ सर्विस अंडर सीसीएस टेम्परेरी रूल्स 1965। फोर्थ क्वेश्चन है, बताइए इसमें से कौन सी मेजर पेनल्टी है। आराम से पढ़िए, सभी डिस्कस हो चुकी हैं, इस वजह से मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को डाइज नोन कब कर सकती है। डाइज नोन के बारे में डिटेल में देखना हो तो डाइज नोन का वीडियो अलग बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ डाइज नोन, ब्रेक इन सर्विस एंड ईओएल, उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल आज के वीडियो में इसको डिस्कस नहीं किया था, आप चाहें तो गूगल सर्च कर सकते हैं। क्या एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्वेंट को एक मिसकंडक्ट के लिए एक से ज्यादा पेनल्टी लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती? अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स फेस कर रहा है और उसको डिपार्टमेंटल एग्जाम में प्रमोट कर दिया और मान लो एग्जामिनेशन में पास हो गया, तो क्या उसको प्रमोशन देंगे या नहीं देंगे? पढ़िए, देखिए मैं एक वीडियो के अंदर आपको सब कुछ नहीं बता सकता हूं। यू हैव टू गो थ्रू द रूल्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। बताइए कब जो है एक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायर करती है एक गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ, किन किन केसेस के अंदर? अनोनिमस कंप्लेंट हो कर सकते हैं या ग्राउंड एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, कोई ग्राउंड एस्टेब्लिश ना हो या कोई ओरल कंप्लेंट मिले, कब कब कर सकते हैं। So this is our today's video as far as your CCA part 1 is concerned. Thank you for all of you for watching this video. If you like the video, then press like button, subscribe or record it. You can also follow us on Instagram and Twitter, and you can also join a Telegram group. So once again, thank you very much.